So today we are starting with English grammar. So in your syllabus there are topics which is called tenses or direct, indirect, active, passive, conjunctions, etc. Here we are starting with very basic topic, that is articles. Might you have studied this in standard 8 and standard 9, but whenever you are writing your answers, whenever you are writing an essay, whenever you are writing a report, so how to use article or what is the proper way or proper method to use article, that you should know very well, right? So we are discussing articles today. Basically, you know, we have three articles which is called a and the, right? So you all are aware about this, that a and the, there are three articles which we use in English. Now a and an have separate rules of its use and the has its separate rules. So we will see it by example. And what is the basic difference between these two, that means a and the, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों को यूज करते हैं तो क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये मैटर हम देखेंगे. So let us begin with a and n. So first thing that you should know, that a and n are the articles which are used for only singular nouns. मतलब जो singular noun होंगे इसी के लिए ही a and n आर्टिकल यूज होगा. सिंगुलर से हम ये समझते हैं, सिंगुलर दैट मीन्स वन एंड ओनली वन, one and only one, that is only considered into the singular. If it is 1.5 or 2 or 3, it is not singular, it will be considered into the plural. So that you should know that a and n are used for singular, and singular means one and only one. Only one. Whenever the object is only one in numbers, then we can use a and n. Another difference, that the, when we are talking about the, then there are two possibilities. The is used for singular and plural as well. मतलब द है वो दोनों में यूज होगा, सिंगुलर नाउन होगा तो भी इसमें यूज होगा, प्लूरल नाउन है तो भी यूज होगा. सो द में रूल्स है वो थोड़े a and n से डिफरेंट होंगे, सो दैट यू शुड नो. तो a and n जो है वो सिंगुलर में आएगा, द जो है वो सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस इज a and n are used with only countable nouns. जिसकी भी गिनती हो सकती है, जो काउंट हो सकते हैं, इसी के साथ ही a and n जो है वो आर्टिकल यूज होगा. जबकि द जो है वो काउंटेबल के साथ भी यूज होगा और अनकाउंटेबल जो है उसके साथ भी यूज होगा. लेट अस सी द एग्जांपल कि a and n जो है, तो मार्बल है तो उसको हम बोल सकते हैं कि a मार्बल, चेयर है तो उसको हम बोल सकते हैं अ चेयर, डोर है तो हम बोल सकते हैं अ डोर. मतलब कि हम इसको काउंट कर सकते हैं, 1 मार्बल, 2 मार्बल, 3 मार्बल, 4 मार्बल. चेयर में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, डोर को काउंट कर सकते हैं. बट when we tell uncountable, that means सीनरी, कोई दृश्य है उसकी बात है, तो सीनरी को हम काउंट नहीं कर सकते, that is uncountable, that is totally abstract form. तो जो abstract वाली चीजें हैं, uncountable है, जैसे कि नेचर हो गया, वाटर हो गया, ये सब में आर्टिकल कौन सा यूज होगा, द. तो ये दूसरा बेसिक डिफरेंस है. पहला डिफरेंस ये है कि ये सिंगुलर में ही यूज हो सकता है, द जो है वो सिंगुलर में भी यूज होगा, प्लूरल में भी होगा. सिंगुलर से हम समझते हैं वन एंड ओनली वन. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड वन, a एंड n जो है वो काउंटेबल्स के साथ ही यूज होंगे, जबकि द जो है वो काउंटेबल्स में भी यूज होंगे और अनकाउंटेबल में भी यूज होंगे.
So this is very basic fundamental that you should know, right? So just take a note of these things, that singular, plural, as I have mentioned to you, and another thing that is countables, uncountable. So let us see first a and n. तो हमने पहले डिफरेंस देखा कि a एंड n और the, ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, तो दो जो मेन डिफरेंस है वो हमने देखे. नाउ सी कि a कहां पे यूज होगा, n कहां पे यूज होगा. नाउ ये बेसिक जो है वो आपको पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो कि भाई a जो है वो कॉन्सोनेंट्स के लिए यूज होता है. कॉन्सोनेंट्स जिसको हम व्यंजन बोलते हैं, राइट. और n जो है वो किसके लिए यूज होगा, वॉवेल्स के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वर. तो a e i o u, whenever the spelling of the word starts with a e i o u, then only and only article n will be used. But there are some exceptions that we will discuss. Now see कि a जो है वो कॉन्सोनेंट्स, सो a जो है वो कॉन्सोनेंट्स के लिए यूज होगा, n जो है वो वॉवेल्स के लिए यूज होगा. वॉवेल्स में जैसे आपको पता है कि a e i o u से अगर कोई भी स्पेल स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आर्टिकल n ही यूज होगा. सो दिस इज द बेसिक दैट वी ऑल नो. बट इन 10th स्टैंडर्ड व्हाट यू शुड नो मोर, दैट व्हेनेवर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, जब हम प्रोनाउंस करते हैं, whenever the pronunciation of the word that will start with vowels, then article n will be used. And whenever the pronunciation of the word that will start with consonants, then we will use article a. So this is the basic thing that you should know, and this is little advanced thing that we studied before, but might you are not aware about. So please take care of that now we will not only focus to the spellings, but also we will look after to the pronunciation of the word, that rather it is starting with the consonants or with the vowels. Let us see example. So here I have mentioned that cat, home, are, 1 rupee note, university, useful article, unicorn, European. Let us see cat. So CAT, cat, that means C is a consonant, तो यहां पे आएगा आर्टिकल A. होम लिखा है H, तो H क्या है, कॉन्सोनेंट. जब हम बोलते हैं तो होम, दैट इज ह, तो वो कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल आएगा A. यहां पे लिखा है हमने R, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं R. इट इज नॉट आवर, इट इज R. सो H O U R, तो अ बोला जाता है, दैट मींस A. तो A क्या है, वोवेल. तो यहाँ पे भले ही H लिखा है दैट इज कॉन्सोनेंट, बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो R होता है, A इज अ वोवेल, तो यहाँ पे आएगा आर्टिकल N. लेट अस सी यूनिवर्सिटी. सो यूनिवर्सिटी हम बोलते हैं य. अब यहाँ पे क्या है, U. U क्या है, वोवेल, बट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यूनिवर्सिटी. तो य दैट मींस Y, और Y A E I O U में कंसीडर नहीं होता है, दैट मींस Y is a consonant. So here you should take care of this thing, that spell starts with U, that is vowel, but when we pronounce the word, जब हम बोलते हैं तब वो शुरू होता है consonant, that is Y. तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आएगा, A यूनिवर्सिटी आएगा, और यहाँ पे N नहीं आएगा, that you should know. Then we have useful article, same theory. या तो भले ही U से स्टार्ट होता है, लेकिन स्पेल कहां से, मतलब हम प्रोनाउंस करेंगे वो क्या शुरू होता है, Y से. तो क्या आएगा यहाँ पे A. नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज यूनिकॉर्न. तो यूनिकॉर्न में भी U है, बट वहां पे N नहीं आएगा, बिकॉज यूनिकॉर्न दैट इज Y. तो Y है, इसके लिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट ही कंसीडर होगा A. यूरोपियन, दिस इज वेरी फेमस एग्जांपल एंड वेरी ट्रिकी आल्सो, कि यूरोपियन जो है उसमें E U R O P E A N, तो E से स्टार्ट होता है. अब E क्या है, वोवेल, बट जब हम बोलते हैं तो क्या बोला जाता है, यूरोपियन, दैट इज य, और य दैट मींस Y. तो Y है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा A.
नाउ वी सी द इनवर्स थिंग दैट इज 1 रुपी नोट। तो यहाँ पे भी स्पेलिंग स्टार्ट होता है ओ से। ओ है दैट मीन्स क्या आएगा, वोवेल, दैट मीन्स एन आएगा। बट जब हम बोलते हैं तो क्या होता है 1 रुपी नोट, व दैट मीन्स वी, और वी हुआ तो वी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा ए। सो these are the some examples that we have seen that have some sort of exceptions that you should know। तो अब से ये ध्यान में रखना है कि पहला हम क्या देखेंगे, वर्ड का स्पेलिंग कहां से शुरू होता है वो देखना है। बट एक बार वर्ड का स्पेलिंग हमने देख लिया, उसके बाद तुरंत हमें उसको प्रोनाउंस करना है। एंड व्हेन वी विल प्रोनाउंस दैट, if pronunciation begin with consonant, then article a will be used. If pronunciation begin with the vowels, then article n will be used, right? So next we will look to the. So far we have seen articles a and n। उसमें हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे, कुछ एग्जांपल्स देखे, प्रोनाउंसिएशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैटर हमने देखी। नाउ वी आर लुकिंग टू आर्टिकल द। सो आर्टिकल द is used, first of all that you should know कि आर्टिकल द जो है वो सिंगुलर में भी यूज होता है और आर्टिकल द दूसरा यूज होता है प्लूरल में। तो दोनों फॉर्म में मतलब यूज होगा। सिंगुलर दैट मींस एक वचन जिसको आप बोलते हो वो, प्लूरल दैट मींस बहुवचन, दैट इज राइट। सिंगुलर हमने पहले देखा वन एंड ओनली वन, प्लूरल दैट मींस वन से कुछ कितने भी ज्यादा है वो सब प्लूरल में कंसीडर होंगे। सो आर्टिकल द में फर्स्ट जो एक कंडीशन है वो है कि जब भी हम कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन की बात करते हैं तब आर्टिकल द जो है वो यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल लिखा है यहाँ पे मैंने, द डॉक्टर। डॉक्टर दैट इज अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, एक प्रोफेशन की बात है कि डॉक्टर की बात है, सो दैट इज द डॉक्टर। टीचर, टीचर इज पर्टिकुलर प्रोफेशन की जो पढ़ाने का काम करेगा, दैट इज द टीचर। देन वी हैव प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेम, द डॉक्टर्स, द टीचर्स। पूरी एज अ होल कम्युनिटी हमने बात की है कि भाई सारे डॉक्टर्स जो है वो, टीचर्स जितने हैं वो। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि पर्टिकुलर प्रोफेशन जो होगा तो उसमें आर्टिकल द का यूज होगा। एंड सेकंड पॉइंट दैट यू शुड नो, सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन दैट यू मस्ट केयर अबाउट, राइट। Next thing that we are looking, that is proper object is mentioned। तो जब भी कोई proper object की बात की है तो उसमें भी आर्टिकल द जो है वो यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है मैंने, the book you want is out of frame। अब हम proper object से क्या कहना चाहते हैं, the book you want, मतलब कि कौन सी बुक की बात है जो आपको चाहिए। तो बुक यहाँ पे कोई नॉर्मल बुक की बात नहीं है, यहाँ पे वो बुक की हम बात कर रहे हैं कि जो आपको चाहिए। तो द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल यूज किया द। सेकेंड एग्जांपल, द ग्लास इज ऑफ ब्लू कलर। तो ग्लास है बट कौन सा ग्लास, कि जो ग्लास कौन से कलर का है, ब्लू कलर का। तो जो पर्टिकुलर ब्लू कलर का जो ग्लास है इसी की बात है। प्रॉपर ऑब्जेक्ट दैट मींस ग्लास है वो कौन से कलर का, ब्लू कलर का। तो इसकी बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। नेक्स्ट यूज है व्हेन देयर इज इंफॉर्मेशन, द इज यूज। देयर इज इंफॉर्मेशन दैट इज जनरल इंफॉर्मेशन, कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन होती है तो उसके लिए भी आर्टिकल द जो है वो यूज होता है। एंड टू डिस्क्राइब द स्पेशलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई भी स्पेशलिटी है, उसको मेंशन करने के लिए हम आर्टिकल द जो है उसको यूज करते हैं। एग्जांपल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पे हमने लिखा कि गाय जो है वो एक यूजफुल एनिमल है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे काउ दैट मींस कोई एक काउ की बात नहीं है कि कोई एक ही काउ ऐसी है कि जो यूजफुल है, वैसा नहीं है। सारी दुनिया में जितनी काउज है वो सारे यूजफुल एनिमल में कंसीडर होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज अ होल जनरल इंफॉर्मेशन को जब कैरी करता है तो उसमें आर्टिकल द जो है उसका यूज होगा।
तो यहाँ पे ये भी देखो कि द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, और सेकंड यहाँ पे भी यूज आप देख सकते हो ए और एन जो हम पढ़े हो कि यहाँ पे क्या है यूजफुल, दैट मींस यू है तो यहाँ पे एन आना चाहिए, बट यूजफुल दैट मींस वाई य, तो इसके लिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ। सेकंड एग्जांपल द कैट लव्स कंफर्ट, तो कोई भी बिल्ली हो उसको कंफर्ट अच्छा ही लगता है, तो पूरी दुनिया में जितनी बिल्ली है उनकी बात है कि द कैट लव्स कंफर्ट, तो particular object when it is considered as a whole then it article the जो है उसका यूज होता है। थर्ड एग्जांपल द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, तो जितने भी हॉर्स होते हैं वो सारे नोबल एनिमल ही होते हैं बाय एंड लार्ज, तो उसके लिए भी हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, जितने भी फ्लावर्स है जितने भी फूल है उसमें गुलाब का जो फूल है वो सब में स्वीटेस्ट है, सबसे ज्यादा स्वीट जिसकी फ्रेग्रेंस है वो रोज की है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल यूज किया द।